Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Before starting a video, it's a request. If you are new to this channel, please do subscribe to my channel and like, share and comment on my videos. So today we are learning about the fecundity and spawning of the fishes. So first of all, you have to know about the total spawners. So total spawners are generally the female which releases all the eggs that are mature in a particular season within a short time interval. So generally you have seen that calves are the total spawners. They releases the all the eggs, and their eggs generally mature in a particular breeding season. You know about the breeding season of calves. The breeding season of calf is generally in the month of May to July, and they releases eggs during the July month, during the मॉनसून सीजन. ओके, सो उनमें क्या होता है, शॉर्ट टाइम इंटरवल में ही जो सारे एग्स उनके फॉर्मेशन होते हैं वो एक ही बार में रिलीज हो जाते हैं. वेयर एज जो अदर, जैसे कि आप जानते हैं अबाउट द कॉमन कार्प में क्या होता है, उसमें 2 या 3 बैचेस में आपका स्पॉनिंग होती है. ठीक है, जैसे उसमें स्पॉनिंग मेनली ब्रीडिंग सीजन के दौरान, यानी कि मॉनसून सीजन के दौरान, जो कि आपका होता है जून टू जुलाई, जनरली उसमें एक ब्रीडिंग होती है. उसके बाद जो ब्रीडिंग दूसरी होती है वो होती है उनकी जैन टू फैब के बीच में. ठीक है, तो कॉमन कार्प जो है वो आपका टोटल स्पॉनर्स में नहीं आएगा. वेयर एज जो अदर कार्प्स हैं, जनरली रोहू, कतला, नैन, silver carp, grass carp, these are generally the total spawners. And one more example, or we can say 2 more examples are there for the total spawners. These are the salmons and the trouts, those who releases all the eggs and their eggs get mature during a particular season, or we can say during the breeding season. Okay, now in these GSI is very low. Okay, GSI very low before the spawning, and after the spawning GSI is very high. GSI क्या होता है? GSI is the गोनाडोसोमेटिक इंडेक्स. गोनाडोसोमेटिक इंडेक्स कैसे आप कैलकुलेट करते हैं? गोनाडोसोमेटिक इंडेक्स जनरली क्या होता है, अबाउट द वेट ऑफ गोनाड्स अपॉन द वेट ऑफ फिश इंटू 100. GSI जनरली क्या होता है, गोनाडोसोमेटिक इंडेक्स, और ये वेरी हाई होता है बिफोर द स्पॉनिंग, वेरी लो होता है बिफोर द स्पॉनिंग, एंड वेरी हाई होता है ड्यूरिंग द स्पॉनिंग. ओके, देन बैच स्पॉनर्स क्या होता है, रिलेटिवली लो होता है इनमें. क्यों क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो गोनैड्स हैं वो, उनका साइज जो होता है वो कम रहता है इनमें. ठीक है, 3 spine stickleback is also a batch spawner. Okay, spawn at interval of 3 to 5 days and GSI is about 20 prior to the spawning. Now comes the fecundity. Fecundity अब क्या होती है? So fecundity is the number of eggs as a female lays in a specified period of time and depend on the number of eggs per spawning and number of spawnings. So mainly fecundity क्या है, जो फीमेल जो है वो अपने जो एग्स हैं वो किसी स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में रिलीज कर रही है, या फिर जो नंबर ऑफ एग्स हैं पर स्पॉनिंग. ठीक है, ये आपकी क्या होती है, फिकेंडिटी होती है, कि जो एग ले कर रही है फीमेल स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में या फिर पर स्पॉनिंग में, वो क्या कहलाती है, आपकी फिकेंडिटी. Now the batch fecundity is number of eggs produced by a female per spawning. Means कि batches में spawning होती है जिन species में या जिन fishes में, उनमें क्या होता है, batch fecundity होती है. ठीक है, वो number of eggs release करती हैं in the batches, or we can say per spawning. Okay, now the breeding season fecundity, number of eggs produced by a female in a particular breeding season. Particular breeding season either in the मॉनसून सीजन, आइदर इन द विंटर सीजन इन द कॉमन कार्प्स. ठीक है, सो ब्रीडिंग सीजन जिस भी टाइम पे होगा जब उनकी फिकेंडिटी या नंबर ऑफ एग्स वो रिलीज करेंगी, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज ब्रीडिंग सीजन फिकेंडिटी. ओके, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड. Now comes the batch fecundity. We have already know about the batch fecundity and breeding season fecundity. Now the lifetime fecundity. So lifetime fecundity is generally the total number of eggs laid by a female
थ्रू आउट इट्स लाइफ, मतलब कि पूरी लाइफ में जितने भी एग्स उसने रिलीज किए हैं, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज लाइफ टाइम फेकेंडिटी. ओके, सो लाइफ टाइम फेकेंडिटी यू नो नाउ कि लाइफ स्पैन में जितने भी एग्स ले किए हैं वो आपकी लाइफ फेकेंडिटी होती है. नाउ द टोटल और द एब्सोल्यूट इंडिविजुअल फेकेंडिटी, इट इज द टोटल नंबर ऑफ एग्स कंटेन्ड इन अ ओवरी ऑफ द फिश. सो ओवरी में कितने एग्स प्रेजेंट है, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज टोटल और द एब्सोल्यूट इंडिविजुअल फेकेंडिटी. ओके, कंसीडर कर लीजिए कि एक फिश है, उसके ओवरी में कुछ टोटल नंबर ऑफ एग्स प्रेजेंट होंगे. ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, टोटल एंड द एब्सोल्यूट इंडिविजुअल फेकेंडिटी. ओके, नाउ द रिलेटिव फेकेंडिटी. रिलेटिव फेकेंडिटी इज अ नंबर ऑफ एग्स पर यूनिट वेट और द लेंथ ऑफ द फिश. सो मेनली उसके वेट पे और लेंथ पे डिपेंड करेगा नंबर ऑफ एग्स वो कितने ले कर रही है या फिर कितने नंबर ऑफ एग्स वो रिलीज कर रही है अपनी बॉडी से, अकॉर्डिंग टू इट्स वेट एंड द लेंथ. ओके, so number of eggs per unit weight and the length of the fish. Now here the examples of some open water spawners are given here and the live bearers are given here. So generally ocean sunfish होती है एक हमारी, ये क्या होती है, pelagic open water spawner होती है. and mola mola produces 28 lakh eggs in one season. Keep in mind 28 lakh eggs in one season. Mola mola is a fish generally which produces 28 lakh eggs per season. Gastrocystus is a parental care, produces only 30 to 100 eggs. Live bearers such as guppy less than 2 dozen of fishes only. ठीक है, live bearers सिर्फ 2 दर्जन से कम एग्स प्रोड्यूस करती है. क्यों? क्योंकि वो लाइव जो फिशेज हैं यानी कि यंग वंस को बॉर्न करती हैं. दैट इज़ वाई दे ओनली कंटेन्स और ओनली गिव बर्थ टू द 2 डजन ऑफ द फिशेज ओनली. प्रॉक्सिमिटी प्रोमैक्सिक्यूटी क्या होता है आपका, बोथ सेक्सेस विल हैव द मल्टीपल पार्टनर्स एंड हैज़ ओनली वन ब्रीडिंग सीजन. जब कोई भी फिश उनके जो हैं मल्टीपल पार्टनर्स होंगे फॉर both the sexes, either the male or the female, both the sexes having the multiple partner, then they are what called as proximicity. Okay, promiscuity. And these fishes are generally Gastrocystus or Clupy family जो होती है या फिर क्लूपी जो फिश होती है, these are having the multiple partners. Okay, and they exhibit poor डेवलप्ड काउंटरशिप, मतलब कि इन्हें बहुत ज़्यादा पार्टनर्स के साथ जब इनके जो ब्रीडिंग सीज़न होता है तो इनमें क्या होता है, जो ब्रीडिंग करने की क्षमता होती है या फिर कह सकते हैं रिप्रोडक्शन की क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है धीरे धीरे. नाउ द मोनोगैमी क्या है कि सिर्फ एक पार्टनर के साथ जब ब्रीडिंग होगी, मेटिंग पार्टनर रिमेन्स टुगेदर ऑलवेज. सो चन्ना स्ट्रेटस एक एग्जाम्पल है, चिचिलोजमा एक एग्जाम्पल है एंड सेराहानस एक एग्जाम्पल है इसका मोनोगैमी का, जिसमें हमेशा के लिए एक पर्टिकुलर पार्टनर ही उसका साथ रहेगा. नाउ द पॉलीगैमी क्या है, इफ द मेल हैज़ द मल्टीपल पार्टनर. ओके, एंड पॉलीएंड्री इफ द फीमेल हैज़ द मल्टीपल पार्टनर. ओके, सो पॉलीएंड्री किस में होता है, जनरली कार्प्स में हमें देखने को मिलता है, एज वेल एज द एम्फीफीरस एक फिश होती है उसमें देखने को मिलता है. वेयर एज पॉलीगैमी यानी कि जिसमें मेल मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, ओरियोक्रोमिस में होता है एंड गैस्ट्रोस्टेस्टस में होता है ये. ओके, thanks for watching guys. If you want to join the online classes for the fisheries exam, either the JRF exam or the other competitive exam, you can join the classes. Okay, and the fees you can see here. For 6,000 you will get all the things, either the live classes or the study notes or the recorded videos, PYQs or mocks, everything you will get in this course. Otherwise the other course you will get only the live classes and PYQs. No notes or handwritten notes are not there. Okay, if you want to join you can contact me on the given email. Okay, thanks for watching guys. Do subscribe to my channel.